students, welcome to Winsome Digital Platform of Winsome International School. Today we are having our next session of class 7th SOF series and the chapter name was Nutrition in Plants and Animals. So let's start. So the topic for today is human digestive system. Human digestive system. We already had a overview of this human digestive system in the previous lecture, है ना? थोड़ा सा हमने overview ले लिया था. Today we will study about that in more detail. Let's start. Digestive system of human beings consists of two main parts. Two main parts होते हैं. First is alimentary canal, that is also known as gut or digestive tract, and the next is digestive glands. So two parts से मिलके बना होता है जो human digestive system है. The first one is alimentary canal. Alimentary canal is also known as gut or digestive tract because वो tract होता है पूरा, इसीलिए. And next is digestive glands. Yes, so we can say that human digestive system consists of two parts. That is human digestive system. We can make a flow chart for this. Human digestive system has mainly two parts. The first is alimentary canal. Alimentary canal. It is also known as gut or digestive tract, right? And the next part is digestive glands. Digestive glands. Okay. This is a flow chart regarding that you can keep in your mind to understand that there are two parts of the human digestive system. First one is alimentary canal and second is digestive glands. Okay. Next is alimentary canal is a long coiled tube which starts from the mouth and ends at the एनस. ये जो एलिमेंट्री कैनाल जो होती है हमारी, वो लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है. लाइक लॉन्ग और सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है जो अलग अलग पार्ट्स जो है बनाती है आगे जाके हमारी एलिमेंट्री कैनाल जो है, लाइक स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब. और जिसका जो ओपनिंग पार्ट होता है वो होता है माउथ. माउथ से स्टार्ट होती है एंड एंड्स एट द एनस. एनस से पे एंड हो जाती है. The first part is mouth. Second part is food pipe or esophagus. Third part is stomach. Fourth is small intestine, then large intestine, then rectum, and then anus. So you have to learn these parts in the sequence. ये जो है इसी sequence में आपको learn करना है, starting from the mouth, then food pipe or esophagus, then stomach, then small intestine, then large intestine, then rectum, and then anus. So so we can say that the alimentary canal starts from mouth, right? Starts and ends on anus. Next. See, digestive glands associated with. अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी होते हैं, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन से होते हैं जो एलिमेंट्री कैनाल के साथ एसोसिएटेड होते हैं और वो क्या क्या अपने सिक्रीट करते हैं. सी, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री कैनाल एंड सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस. डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का वर्क क्या होता है? डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज करना, ठीक है, या और एंजाइम्स जो होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं उनको रिलीज करना. क्या करेंगे वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स और जूसेस? कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस. क्या करेंगे? जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स होंगे उनको सिंपल वंस में कन्वर्ट करने का वर्क करेंगे. कौन करेंगे? डाइजेस्टिव जूस और डाइजेस्टिव एंजाइम्स. कौन सिक्रीट करेगा? डाइजेस्टिव ग्लैंड सिक्रीट करेंगे. लीवर, पैनक्रियास, सलाइवरी ग्लैंड्स. इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं? We will learn about some digestive glands and some of those are digestive glands. See, first one is
liver, we can say liver. Next is pancreas. Next is salivary glands. Salivary glands and gastric glands. And gastric glands are example of digestive glands which are associated with alimentary canal. I hope you got this. Next one. See, we can let's start to understand the human digestive system. We will go through all these points and the glands and the parts that are associated with the alimentary canal and what are their work. See, first is buccal cavity. What is buccal cavity? Buccal cavity is your mouth. जब आप खाना मुंह में लेते हो, ये जो माउथ वाला पार्ट है इसको बोलते हैं buccal cavity. And what is the work? Mechanical breakdown of food by chewing. हम chew करते हैं, चबाते हैं खाने को मुंह में, उससे क्या होता है, उसका मैकेनिकल ब्रेकडाउन होता है, यानी कि वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है. नेक्स्ट इज सलाइवरी ग्लैंड. सलाइवरी ग्लैंड्स का वर्क क्या होता है? सलाइवा को, थूक को सिक्रीट करना. ठीक है. सलाइवा मॉइस्ट एंड ल्यूब्रिकेट्स द फूड. सलाइवा का वर्क क्या होता है? फूड पार्टिकल्स जो है उनको मॉइस्ट करना, ल्यूब्रिकेट करना. ठीक है. देन सलाइवरी अमाइलेज डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स. सलाइवरी ग्लैंड्स मैंने आपको कल बताया था इन द प्रीवियस लेक्चर. आई टोल्ड यू सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो 3 होते हैं टोटल. उनमें से एक जो होता है वो होता है सलाइवरी अमाइलेज. सलाइवरी अमाइलेज. ठीक है. इसका वर्क क्या होता है? ये किसको डाइजेस्ट करेगा? कार्बोहाइड्रेट्स को माउथ में हमारे डाइजेस्ट कर देता है. डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स. डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट. वी कैन से डाइजेस्ट कार्ब्स. कार्ब्स को डाइजेस्ट करने का इसका वर्क होता है. ठीक है. देन द फूड गोज इनटू द फूड पाइप. ईसोफेगस में जाता है. ईसोफेगस क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा फूड को. कहां से ट्रांसपोर्ट करेगा? माउथ से स्टमक तक ट्रांसपोर्ट करेगा. उसके बीच में एक जो होता है फेरिंग्स आता है, हमारे स्वेलो करने का वर्क करता है, यानी कि जो हम लोग स्वेलो करते हैं, गिरते हैं खाने को, वो वर्क करता है फेरिंग्स. ठीक है. नेक्स्ट इज स्टमक. व्हाट इज स्टमक? सी, स्टमक इज द स्टमक जो है वो हमारे माउथ से के बाद में फूड पाइप होता है. फूड पाइप के बाद में कहाँ खाना जाएगा? स्टमक में जाएगा. स्टमक में क्या होगा? स्टोर्स एंड चर्न्स द फूड. पैप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन. HCl एक्टिवेट्स एंजाइम एंड किल्स जर्म्स. म्यूकस प्रोटेक्ट्स द स्टमक वॉल. क्या होता है स्टमक के पास? क्या होता है? जो पैप्सिन होते हैं, पैप्सिन एंजाइम होते हैं. ठीक है. स्टमक के पास, और पेप्सिन का वर्क होता है P फॉर पैप्सिन, P फॉर प्रोटीन्स. डाइजेस्ट प्रोटीन्स. प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने का वर्क करता है. ओके. देन HCl भी होता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेजेंट इन आवर स्टमक. सुना होगा आपने दैट HCl वर्क्स टू किल द जर्म्स. खाने में कोई भी जर्म्स अगर प्रेजेंट है उनको किल करने का वर्क करता है, और जो बाकी एंजाइम्स होते हैं उनको भी एक्टिवेट करने का काम करता है. और ऑफ कोर्स द क्वेश्चन अराइजेस, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट? हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. अगर हम वो हमारे स्टमक में प्रेजेंट है तो उससे हमारा जो स्टमक है उसमें बर्न भी तो हो सकता है ना? बर्न हो सकता है. लाइक इफ आई HCl अगर हमारे हाथ पे गिर जाता है देन बर्न हो जाता है ना? तो HCl फिर हार्म क्यों नहीं कर रहा हमारे स्टमक को? इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज स्टमक के चारों तरफ एक म्यूकस की कवरिंग है. म्यूकस ने उसको कवर कर रखा है, जो स्टमक की वॉल्स जो होती है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है. स्टमक की दीवारों को प्रोटेक्ट करता है म्यूकस. इसलिए HCl का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता. HCl सिर्फ अपना वर्क करता है टू किल द जर्म्स एंड टू एक्टिवेट अदर एंजाइम्स. ओके. Coming to the next one.
सी लिवर, लिवर क्या करेगा, बाइल सिक्रीट करेगा, दैट्स एड्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। बाइल जूस जो है वो सिक्रीट करता है लीवर, वो किस में हेल्प करेगा, डाइजेस्ट द फैट, हमारे खाने में जो भी फैट्स प्रेजेंट है उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर जो है वो बाइल जूस को स्टोर करके रखता है, जो लिवर से बाइल जूस मिलता है उसको कौन स्टोर करता है, गॉल ब्लैडर स्टोर करता है। नेक्स्ट इज पेनक्रियाज, पेनक्रियाज भी अपना जूस रिलीज करता है एंड दैट इज नोन एज पेनक्रियाटिक जूस व्हिच एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। पेनक्रियाटिक जूस जो है वो तीनों पे एक्ट करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स पर भी, प्रोटीन्स पर भी और फैट्स पर भी, तीनों पर वर्क करता है पेनक्रियाटिक जूस टू डाइजेस्ट। नेक्स्ट, आफ्टर स्टमक द फूड कम्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, जहां पे कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है फूड का पूरी तरीके से डाइजेशन कहां पर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, ठीक है। टेक्स प्लेस एंड एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब जो होता है, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब कहां पर हो जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। स्टमक में आया खाना, माउथ से ईसोफेगस में, ईसोफेगस से स्टमक में, स्टमक से कहां पर जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा, पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगा खाना, और जो न्यूट्रिएंट्स होंगे उसको वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में जाएगा खाना लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, जो वाटर होता है उसको रीअब्जॉर्ब कर लेता है, खाने में जो भी वाटर प्रेजेंट होता है उसको रीअब्जॉर्ब करके और फॉर्म्स फीकस। अनडाइजेस्टेड, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, फीकल मैटर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, फीकस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, एक्सक्रीटा बनाया जाता है उसका। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, वाटर पूरा जो भी एब्जॉर्ब हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स कहां पर एब्जॉर्ब होंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वाटर कहां पे एब्जॉर्ब होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। बी अवेयर अबाउट दीज पॉइंट्स कि वाटर कहां पे डाइजेस्ट हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होंगे, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसको एक्सक्रीटा में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, फीकल मैटर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वन इज आफ्टर लार्ज इंटेस्टाइन द एक्सक्रीटा, अब फूड तो बचा नहीं, फूड, अब वी कांट से कि वो फूड उसमें जो है वी कांट से कि अभी फूड मटेरियल है या फिर फूड पार्टिकल से नहीं, अब वो क्या बन चुका है, फीकल मैटर बन चुका है, एक्सक्रीटा बन चुका है, तो वो किस में चला जाता है, स्टोर्स एंड एक्सपेल्स फीसेस, वो जाके रेक्टम में, इस जगह पर रेक्टम में चला जाता है और यहाँ पे स्टोर हो जाता है, ठीक है। स्टोर होने के बाद में यहाँ पे स्टोर हो जाता है, रेक्टम में स्टोर हो जाता है, और जो फीकस होता है वो फीकल मैटर होता है, अब ये फूड पार्टिकल नहीं है, ये फीकल मैटर बन चुका है, अनवांटेड फूड मटेरियल जो भी है। देन रेक्टम से किस में जाएगा, एनस, एनस से, एनस जो होता है वो लास्ट पार्ट होता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का, वहां ओपनिंग होती है, उससे बॉडी से बाहर जो है हमारा एक्सक्रीटा वो निकल जाता है, तो ओपनिंग फॉर एलिमिनेशन ऑफ फीकस। एनस से क्या होगा, रेक्टम में स्टोर था फीकल मैटर, एनस से क्या होगा, उसका एलिमिनेशन हो जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा एक्सक्रीटा को, फीकल मैटर, एक्सक्रीटा फीकल मैटर बोथ आर द सेम थिंग। आई होप यू गॉट दिस। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट माउथ। माउथ क्या होता है, सी वी ऑलरेडी गॉट द ओवरव्यू थ्रू द डायग्राम, हमने डायग्राम के थ्रू सारा ओवरव्यू ले लिया है, अब पढ़ते हैं आगे। माउथ इज द एंटीरियर ओपनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, जो माउथ होता है वो हमारा एंटीरियर ओपनिंग होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की, आगे की तरफ, फेस के आगे की तरफ ये जो ओपनिंग होती है, दिस इज द माउथ, एंटीरियर ओपनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम थ्रू विच फूड इज इंजेस्टेड, फूड जिसके थ्रू हम फूड जो है हमारी बॉडी को अंदर देते हैं। द इनर साइड ऑफ द माउथ इज कॉल्ड बक्कल कैविटी, अंदर वाला जो पार्ट होता है, यानी कि ये वाला, ये तो ओपनिंग है, ये माउथ है, अंदर वाला जो आपके टीथ है, जहां पे टंग है, जहां पे, दैट इज नोन एज बक्कल कैविटी, ये बक्कल कैविटी होती है। बक्कल कैविटी कंटेन्स टीथ, मैंने अभी बस जस्ट बताया, टीथ होंगे, टंग होता है और सलेवरी ग्लैंड्स भी बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। द टीथ कट द फूड, टीथ का वर्क क्या होता है, फूड को कट करना, स्मॉल पीसेस में कट करना, ठीक है, उसको च्यू करना और उसको ग्राइंड करना, फूड को च्यू करना और ग्राइंड करना छोटे छोटे फूड पीसे, छोटे छोटे पीसेस में। द प्रोसेस ऑफ चूइंग द फूड विच इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ जॉज एंड टीथ, जिस प्रोसेस से हम खाना चबाते हैं मुंह में, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, मैस्टिकेशन, मैस्टिकेशन बोला जाता है इस प्रोसेस को, जब हम मुंह में खाने को चबा रहे हैं, ठीक है, च्यू कर रहे हैं, क्रश कर रहे हैं छोटे फूड पार्टिकल्स में, उसको क्या बोला जाता है, मैस्टिकेशन बोला जाता है।
3 pairs of salivary glands secrete saliva. I already told you there are 3 pairs of the salivary gland. Pairs का मतलब है कि 3 pairs होते हैं, 3 pairs होते हैं और उसमें हर पेयर में 2 ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, हर पेयर में में 2 ग्लैंड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 3 pairs of salivary gland are present in the buccal cavity, हमारी buccal cavity में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, it moistens the food so that it becomes easy to swallow. क्या वर्क करते हैं, सलाइवा सिक्रीट करते हैं, सलाइवा हमारे फूड को मॉइस्ट कर देता है और मॉइस्ट करने के बाद में क्या होता है, वो हम उसको आराम से स्वेलो कर सकते हैं, गिट सकते हैं। सलाइवा कंटेन्स एंड एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवा के पास एक एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज, हमने जस्ट बात करी थी। सलाइवरी अमाइलेज का क्या वर्क होता है, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने में होता है। दैट ब्रेक डाउन द स्टार्च ऑफ द फूड, स्टार्च में क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स ही प्रेजेंट होते हैं, इनमें कार्ब्स होते हैं, राइट, कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट, तो किसका ब्रेकडाउन होता है, स्टार्च या फिर कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन करने में ये हेल्प करते हैं, सिंपल शुगर में कर देते हैं। सलाइवरी अमाइलेज क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स या स्टार्च जो भी हम बोल रहे हैं उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देगा। द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग सलाइवा विद द फूड, टंग क्या करता है, हेल्प करता है सलाइवा को मिक्स करने में, टंग का रोल होता है सलाइवा जो है वो फूड के साथ में मिक्स हो जाए। नेक्स्ट वन, सी टीथ, व्हाट इज द वर्क ऑफ द टीथ, टीथ क्या करते हैं, हमारे खाने को क्रश करने में हेल्प करते हैं छोटे फूड पार्टिकल्स में। एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग हैज 32 टीथ, 16 इन ईच जॉ, एडल्ट ह्यूमन बीइंग जो होते हैं उनके टोटल 32 होते हैं, ठीक है, टीथ एक जॉ में, अपर एंड लोअर जॉ 16 प्रेजेंट होता है, ऊपर भी 16 नीचे भी 16 प्रेजेंट होता है। A child has only 20 teeth which are called milk teeth, बच्चे के पास सिर्फ 20 teeth होते हैं और वो क्या कहलाते हैं, milk teeth कहलाते हैं, ठीक है। milk teeth fall off by the age of 10 and permanent teeth take their place. We have already known to this fact that जो milk teeth होते हैं वो 10 years के बाद में क्या होते हैं, जो ब्रेक डाउन होने शुरू हो जाते हैं और वो रिप्लेस कर दे, उसकी जगह परमानेंट टीथ जो है आ जाते हैं। In human beings, teeth are of 4 different types based on their shapes and functions. Teeth जो है ह्यूमन बींग्स में 4 टाइप्स के होते हैं, बेस्ड ऑन फंक्शन एंड बेस्ड ऑन देयर शेप एंड फंक्शंस। किस बेसिस पे डिवाइड करा गया है, शेप्स और फंक्शंस की बेसिस पे। द 4 आर इंसीजर्स, प्रीमोलर्स, कैनाइन्स एंड मोलर्स। लेकिन अगर मैं बात करूं कि हमारे जो सीक्वेंस क्या होता है हमारे जो माउथ में, तो सीक्वेंस ये होता है इंसीजर्स, उसके बाद में होते हैं कैनाइन्स, उसके बाद में प्रीमोलर्स एंड देन मोलर्स। तो सीक्वेंस ये वाला होता है, ठीक है, सीक्वेंस जो होता है वो ऐसे होता है, ठीक है। तो कौन कौन से टीथ 4 टाइप्स में डिवाइडेड है बेस्ड ऑन द फंक्शन एंड शेप, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। The white substance that covers our teeth is called enamel. जो हमारा जो टीथ है उसके ऊपर जो व्हाइट कलर का जो सब्सटेंस है जो कवर कर रहा है हमारे टीथ को, you can see that, वो क्या है, enamel बोलते हैं उसको, enamel बोलते हैं। It is the hardest substance of the human body, हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस हम बोल सकते हैं क्या होता है, enamel होता है। See, now let's look at the diagram. अब फर्स्ट वन जो है see, I talked about, पहले सबसे पहले जो हम बात कर लेते हैं सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, इंसीजर्स कुछ ऐसे होते हैं शेप में और कैनाइन्स कुछ ऐसे होते हैं। अब मैं मोलर्स की बात करूं तो उनके 2 ऐसे होते हैं और ये प्री मोलर्स कहलाते हैं, एंड देन मोलर्स ये वाले होते हैं। सी, तो you can understand from the diagram that incisors, canines, premolars and molars ऐसे होते हैं, ठीक है। See, you can see the canines, incisors here, you can see the canines here, you can see the premolars and you can also see the molars here, ठीक है। और अगर बात करें तो ये जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है, पिंकिश पार्ट जो होता है, वो क्या होता है, वो गम्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज अल्वा,
जो तला होता है हमारे ऊपर, जो माउथ के ऊपर वाली साइड में जो होता है वो होता है अल्वा, उसको बोलते हैं अल्वा, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज टंग, जो होता है उसके ऊपर छोटे छोटे ऐसे होते हैं, आप इफ यू कैन वॉच इन द मिरर, आप देखेंगे तो उनके ऊपर छोटे छोटे बर्ड्स टाइप प्रेजेंट होता है टंग पे, उसको बोलते हैं पैपिले ऑफ टंग, ठीक है। नेक्स्ट जो है टंग, पता ही आपको। देन पेलेस्टाइन टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स होते हैं हमारी बैक साइड में, कई बार टॉन्सिल्स हो जाते हैं, स्वोलन अप हो जाते हैं जब हमारे, है ना, हम बोलते हैं टॉन्सिल्स हो गए हैं तो स्वोलन अप हो जाते हैं, तो पेलेस्टाइन टॉन्सिल्स पीछे वाली, पेलेटाइन टॉन्सिल्स पीछे वाली साइड में होता है। सॉफ्ट पैलेट जो होता है वो सॉफ्ट पैलेट एंड हार्ड पैलेट। नेक्स्ट इज लिप्स, तो ऐसे होते हैं, सॉफ्ट पैलेट जो होता है वो पीछे वाली साइड में होते हैं थोड़े, और वो सॉफ्ट होते हैं, और आगे वाली साइड में जो होती है ऊपर वाली पैलेट वो हार्ड होती है, इसलिए हार्ड पैलेट बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ टीथ इन एडल्ट ह्यूमन, टाइप्स ऑफ टीथ हम पढ़ रहे थे जो एडल्ट ह्यूमन में क्या होते हैं। सी नेम ऑफ टीथ, शेप से अगर हम देखें तो शेप में इंसीजर्स की जो होती है शेप वो कैसी होती है, सीजर लाइक शेप होती है, और कैनाइन्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, शार्प एंड पॉइंटेड। यू हैव टू लर्न दीज शेप्स एंड कीप दीज शेप्स इन द माइंड। प्रीमोलर्स जो होते हैं वो फ्लैट एंड रिंज्ड विद स्मॉल ग्रूव्स, ऐसी शेप होती है। फ्लैट एंड वाइड विद रिंजेस, जो मोलर्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं और वाइड होते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या होगा, इंसीजर्स का फंक्शन होता है कटिंग एंड बाइटिंग, कट करना खाने को और बाइट करना। कैनाइन का होता है टीयर करना, और प्री मोलर्स का क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, एंड मोलर्स का भी सेम फंक्शन होता है। नंबर की बात कर ले अगर हम, अपर जॉ में और लोअर जॉ में नंबर दोनों का सेम रहता है, ठीक है। टोटल हमें पता है एडल्ट ह्यूमन में 34 होते हैं, तो अपर जॉ और लोअर जॉ में नंबर सेम रहता है। अपर जॉ में इंसीजर्स होते हैं 4, लोअर जॉ में भी 4। देन कैनाइन्स ऊपर भी 2, नीचे भी, लोअर में भी 2। देन अपर में 4 प्रीमोलर्स, नीचे भी 4। यू हैव टू लर्न दीज नंबर्स की क्या क्या नंबर्स होते हैं हर जॉ में, और दोनों जॉ के सेम होते हैं, तो आप एक जॉ के लर्न कर लोगे तो दूसरे भी हो जाएंगे लर्न। देन मोलर्स जो होते हैं अपर में भी 6 और लोअर में भी 6 होते हैं, ठीक है। अब आप इनका टोटल करोगे तो इंसीजर्स की बात करें अगर पूरे माउथ में तो 8 होते हैं, ठीक है। कैनाइन्स की बात करें माउथ में तो 4 होते हैं टोटल, लोअर जॉ और अपर जॉ को ऐड करके इन दोनों को ऐड करा है, ठीक है। तो फिर प्रीमोलर्स की बात करें तो 8 होते हैं हमारे जो अपर और लोअर जॉ दोनों में, और अगर मोलर्स की बात करें तो 12 होते हैं अपर और लोअर जॉ दोनों में। और इनका टोटल करेंगे 8 + 4 12, 12 + 8 20, 20 + 12 32। तो एडल्ट ह्यूमन बीइंग में 32 जो होते हैं टीथ प्रेजेंट होता है। आई होप यू गॉट दिस। तो आपको लर्न करना है ये सीक्वेंस क्या रहेगा, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, सीक्वेंस ये रहेगा, ठीक है। यू कैन सी इन द माउथ ऑल्सो, आगे की साइड में जो आपके टीथ है 4 टीथ अपर जॉ में, और नीचे वाली जो जॉ है आपकी दोनों लोअर एंड अपर जॉ में 4 टीथ जो आगे के है वो इंसीजर्स है, आगे के 2 दोनों साइड में वो कितने हैं, 1 इधर 1 इधर होता है, ठीक है। तो कैनाइन्स जो होते हैं वो 1 इधर 1 इधर, ठीक है। कैनाइन्स देन प्रीमोलर्स एंड देन मोलर्स, ऐसे होते हैं। तो इंसीजर्स, कैनाइन्स एंड प्रीमोलर्स, इनका सीक्वेंस ये रहेगा, और नंबर क्या रहेगा, हम अब एक जॉ का लर्न कर लेंगे तो दूसरे जॉ का अपने आप हो जाएगा। 4 2 4 6, यू हैव टू लर्न दिस नंबर। एडल्ट ह्यूमन बीइंग में क्या रहता है, सीक्वेंस, इंसीजर्स, कैनाइन्स, जो सीक्वेंस होता है वो सेम रहता है एडल्ट ह्यूमन बीइंग चाइल्ड दोनों में। नंबर चाइल्ड में बस थोड़े से कम होते हैं और बाद में वो जो है आ जाते हैं, तो उस जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाता है। तो एडल्ट ह्यूमन बीइंग में नंबर क्या रहेगा, 4 2 4 6, ये सीक्वेंस रहेगा, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, एंड नंबर क्या रहेंगे 4 2 4 6 रहेगा, ठीक है। एंड देन आप ये एक जॉ का है, ठीक है। देन अपर जॉ और उसको 2 से करके देन यू कैन ऐड, तो 32 आ जाएगा। Next is Olympiad bite. Carnivores have highly developed canines to tear off the flesh easily. We have already learned that canines का work क्या होता है, canines जो होते हैं वो फूड पार्टिकल जो होते हैं उसको, फूड पार्टिकल को टीयर करने में काम आते हैं,
टीयर करने में काम आते हैं। तो कार्निवोर्स को फ्लैश को टीयर करना होता है, इसीलिए कार्निवोर्स के जो कैनाइंस होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं, ठीक है, और हाईली डेवलप्ड होते हैं। Most rodents have long scissor-like incisors for gnawing their food. जो rodents होते हैं उनके जो food हमने पढ़ा था कल की, gnawing their food कौन करता है? gnawing rabbit करता है ना, squirrel करती है। तो उनके जो incisors होते हैं, क्योंकि वो उनको bite करना होता है, ठीक है, तो उनके जो incisors होते हैं वो कैसे होते हैं कि long scissor-like होते हैं, ठीक है। Okay, I hope you got this. So next one is spiny anteaters and scaly anteaters are toothless. Spiny anteaters और scaly anteaters जो होते हैं वो animals होते हैं, और इनका क्या होता है कि जो ये toothless होते हैं, इनके पास कोई दांत नहीं होते हैं, ठीक है। So क्या होता है, elephant tusks आर मॉडिफाइड इंसीजर्स। एलिफेंट की जो टस्क होती है वो मॉडिफाइड इंसीजर्स होते हैं, उसके एक्चुअल में जो इंसीजर्स है वो मॉडिफाई होकर टस्क बना ली उन्होंने, ठीक है। और टस्क ऑफ वॉलरस, वॉलरस की जो टस्क होती है वो मॉडिफाइड कैनाइंस होती है। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फूड पाइप और ईसोफेगस। वी हैव ऑलरेडी गॉट दिस इन अ ओवरव्यू, हमने पढ़ लिया था ऑलरेडी कि फूड पाइप जो होता है वो क्या हेल्प करता है, माउथ से स्टमक में। ईसोफेगस एंड फूड पाइप आर सेम थिंग। तो क्या हेल्प करता है, माउथ से स्टमक में खाना जो है ट्रैवल करता है, वो किस में ट्रैवल करता है, फूड पाइप में ट्रैवल करता है, और वी कैन से ईसोफेगस में। द टंग पुशेस द मॉइस्ट बॉल ऑफ फूड बोलस। अब हम क्या बोलेंगे, जो बॉल बन गई आफ्टर चूइंग एंड बाइटिंग आफ्टर एंड मिक्सअप ऑफ सलाइवा इन आवर माउथ, अब वो जो फूड है हमारा उसकी एक बॉल बन गई, वो बॉल क्या अब कहलाएगी, बोलस बोलेंगे। द नेम फॉर दैट इज बोलस। फ्रॉम द माउथ टुवर्ड्स द फेरिंग्स। अब जो फेरिंग्स होता है हमारा, फेरिंग्स इज द ओपनिंग ऑफ द फूड पाइप। तो ओपनिंग जो होती है फूड पाइप की उसको फेरिंग्स बोलते हैं। तो फेरिंग्स से जो माउथ से फेरिंग्स तक वो ट्रेवल करता है, ठीक है। अब क्या होगा, from pharynx food passes to the long tubular esophagus that runs along the neck and chest. हमारे chest और neck के along जो ये जो food pipe आ गई, pharynx is the opening of the food pipe. अब pharynx से जो खाना होगा वो food pipe में enter हो जाएगा, that is long and tubular esophagus. No digestion takes place. यहाँ पे सिर्फ food travel कर रहा है, bolus जो है वो सिर्फ travel कर रहा है अभी तक, digestion कुछ भी नहीं होता food pipe में। हमारे माउथ में सलाइवरी अमाइलेज हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट्स के पार्शियल डाइजेशन में। पार्शियल यानी कि कंप्लीट डाइजेशन माउथ में नहीं होता हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक है, लेकिन पार्शियली हो जाता है डाइजेशन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। वी हैव ऑलरेडी रेड दिस। लेकिन जो डाइजेशन, अब कोई भी डाइजेशन हमारे फूड पाइप में टेक प्लेस नहीं करेगा, कुछ भी डाइजेशन हमारे फूड पाइप में नहीं होता है। द फूड इज जेंटली स्क्वीज्ड downwards into that stomach by the rhythmic contractions of muscular walls of esophagus. हमारा जो ईसोफेगस है उसमें कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, जिससे जो हमारा फूड होता है बोलस जो होगा वो कहां पे चला जाएगा, स्टमक में चला जाए, एंटर हो जाए। देन this type of wave-like movement is called peristalsis. Peristalsis इस movement का नेम है। कौन सा movement होता है peristalsis, जिसमें फूड जो है ईसोफेगस से ट्रेवल करता है और रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता रहता है। उसकी वजह से जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है फिर रिलैक्सेशन होता है, उससे क्या होता है, जो बोलस होता है वो आराम से जो है हमारे ईसोफेगस में ट्रेवल कर लेता है और स्टमक में एंटर कर लेता है। Then this movement is known as peristalsis and occurs throughout the एलिमेंट्री कैनाल टू पुश द फूड फॉरवर्ड। हमारे पूरी एलिमेंट्री कैनाल में ये जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, रिलैक्सेशन होता है, ये होता है जिससे फूड जो है इजीली स्टमक में एंटर कर जाए। एंड दिस मूवमेंट इज नोन एज पेरिस्टाल्सिस। सी यू कैन सी इन द डायग्राम आल्सो, ये फूड बोलस है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ, यहाँ पे रिलैक्सेशन हो गया, ठीक है। तो रिदमिक जो ये जो हो रहा है सीक्वेंसली, जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है हमारे फूड पाइप का, ईसोफेगस का, ये ईसोफेगस है, ईसोफेगस का, ठीक है। उससे क्या हो रहा है, बोलस जो है वो आराम से ट्रैवल करके स्टमक में एंटर कर जाता है। यू कैन सी जो फूड बोलस है वो कैसे ट्रैवल कर रहा है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, स्टमक। स्टमक इज द नेक्स्ट पार्ट जो फूड पाइप के बाद में आता है, स्टमक में एंटर कर जाता है जो बोलस होता है। After the rhythmic contractions and relaxation, the movement is known as peristalsis. We already read this.
Stomach is a J-shaped muscular bag-like structure located on the left side of abdomen, just below the ribs. हमारे जो ribs होते हैं, ठीक है, उसके just नीचे stomach present होता है. Stomach J-shaped का होता है, J-shaped होता है stomach. Muscular bag-like structure होता है हमारा stomach. It receives food from the food pipe at one end and opens into small intestine at the other end. फर्स्ट हमने बात करी कि जो सीक्वेंस होता है वो ईसोफेगस होता है. ईसोफेगस से खाना जाएगा स्टमक में, स्टमक से कहां पे जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में. तो इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो कहां पे होता है, ईसोफेगस होता है. और ईसोफेगस के बाद में स्टमक, और स्टमक कहां पे ओवर होगा, कहां पे खत्म होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन पे. तो द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सिक्रीट्स गैस्ट्रिक जूस. हमने ऑलरेडी बात करी थी कि हमारे गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होते हैं, HCl प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है और गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज करता है हमारा स्टमक. एंड कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इन जूसेस में, जो किसमें हेल्प करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं. हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी प्रेजेंट होता है, HCl जिसको हम बोल सकते हैं, और म्यूकस भी प्रेजेंट होता है. व्हाट इज द वर्क फॉर द म्यूकस, वी ऑलरेडी डिस्कस दिस. म्यूकस क्या काम करता है, हमारी जो स्टमक की वॉल्स होती है उसको प्रोटेक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ठीक है. The food mixes thoroughly with the digestive juice. फूड जो है वो thoroughly digestive juices के साथ मिक्स हो जाता है स्टमक में जाने के बाद में. एंड churned in the stomach, churning शुरू हो जाती है फूड की स्टमक में. हाइड्रोक्लोरिक एसिड kills बैक्टीरिया. हाइड्रोक्लोरिक, we already discussed this, the work of the hydrochloric acid is to kill bacteria present in the food. फूड में जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उनको किल करने का वर्क करता है. एंड makes the medium in stomach acidic for the action of enzymes. HCl है, HCl is a strong acid. Strong acid है तो जो पूरा जो मीडियम होगा जो स्टमक का वो क्या होगा, एसिडिक बन जाएगा. और एसिडिक बनने के बाद में जो एंजाइम्स होते हैं वो उस पीएच पे, उस पीएच लेवल पे भी, इफ यू नो दैट कि जो पीएच होता है एसिड्स का वो जो होता है वो 7 से कम होता है, और जो बेस का होता है पीएच वो 7 से ज्यादा होता है. ऑन द स्केल ऑफ 1 to 14 काउंट होता है. तो जो स्टमक में जो मीडियम होता है वो एसिडिक कन्वर्ट हो जाता है, और इस एसिडिक मीडियम में जो एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं वर्क करने के लिए. The mucus protects the lining of the stomach. We already got this कि mucus क्या करता है, जो HCl जो होता है उससे प्रोटेक्ट करता है स्टमक की लाइनिंग को, ताकि HCl से स्टमक की लाइनिंग जो है डैमेज ना हो. Action of from the action of hydrochloric acid in the stomach, food gets partly digested and then moves towards small intestine. Small intestine में complete digestion होगा. पार्शियली, पार्टली कहां पर हो जाएगा, स्टमक में हो जाएगा. यानी कि हाफ डाइजेशन, ऑलमोस्ट पार्शियली, यानी कि थोड़ा डाइजेशन कहां पे हो जाता है, हमारे स्टमक में हो जाता है. स्टमक से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जो होता है कंप्लीट डाइजेशन होता है और एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का. You can see in the diagram also, esophagus जो है वो कहां पे ओपन हुआ, स्टमक में. स्टमक इज J shaped, ये पूरा J shaped में है स्टमक, और स्टमक के बाद में फूड कहां पे चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है. नेक्स्ट वन, लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियास. लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास जो होते हैं वो ऑर्गन्स नहीं, और जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल होते हैं उसके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं. ये अपना अपना जो जूस होता है, डाइजेस्टिव जूस होता है, उसको सिक्रीट करते हैं, एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं जो कि फूड पर वर्क करते हैं फॉर द डाइजेशन ऑफ द फूड. लीवर इज अ रेडिश ब्राउन कलर्ड ग्लैंड. लीवर क्या होता है, लीवर रेडिश ब्राउन कलर ग्लैंड होता है. यू कैन सी दिस, ये जो यहाँ पे है ये लीवर है. लीवर रेडिश ब्राउन कलर में होता है, और जो सिचुएटेड ऑन द राइट साइड जस्ट अबव द स्टमक. राइट साइड में यहाँ पे स्टमक के जस्ट अबव वाली जो साइड होती है आपकी राइट साइड, उधर ये सिचुएटेड होता है, ठीक है. It is the largest gland in the body. हमारे if the question arises, the largest gland in our body is the liver. Secretes bile juice. Bile juice को secrete करता है, which is stored into a hollow pear-shaped organ called gallbladder. किसमें स्टोर हो जाता है, you can see this, ये ऐसा होलो सा जो ऑर्गन है यहाँ पे, the organ is known as gallbladder जो होता है उसमें जाके स्टोर हो जाता है. बाइल जूस सिक्रीट किसने किया, लीवर ने सिक्रीट किया. कहां पे स्टोर हुआ, गॉल ब्लैडर में स्टोर हुआ. Bile is alkaline and helps to neutralize the acidity of the food. अब क्या होता है, बाइल जो होता है वो एल्कलाइन होता है, बेसिक होता है. एल्कलाइन एंड बेसिक आर द सेम थिंग.
एल्कलाइन होता है नेचर में, ठीक है। अब बेसिक है, एल्कलाइन है जो बाइल जूस है उसका जो नेचर है, लेकिन जो हमारा स्टमक होता है उसका तो एसिडिक था नेचर। तो जब एल्कलाइन और एसिडिक नेचर जब जैसे एंटर होता है उसमें जो बाइल जूस होता है, तो जो हमारा जो स्टमक होता है उसके पीएच को, उसके नेचर को न्यूट्रलाइज करने का वर्क करता है, यानी कि पीएच जो है वापस जो है न्यूट्रल हो जाए, उसमें हेल्प करता है। लीविंग द स्टमक, the bile does not contain any enzymes, bile में कोई भी enzymes present नहीं होते हैं। The question arises which of the gland secretes the digestive juice but it does not contain any enzymes। तो आंसर आएगा liver secretes the bile juice which does not contain any enzymes। कोई enzymes नहीं होते, क्या हेल्प करेगा, pH को alkaline करने में हेल्प करेगा। It plays important role in digestion of fats। फैट्स का डाइजेशन करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बाइल जूस। द बाइल ब्रेक्स अप फैट्स इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स, क्या करता है बाइल जो होता है फैट को टाइनी ड्रॉपलेट्स में ब्रेक डाउन कर देता है, उसका कैन बी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब मोर इजीली। तो क्या होता है, जो टाइनी ड्रॉपलेट्स होती है उनको आराम से डाइजेस्ट करा जा सकता है और एब्जॉर्ब भी करा जा सकता है। पेनक्रियाज इज अ लीफ शेप्ड ग्लैंड प्रेजेंट बिलो द स्टमक, हमारे स्टमक के नीचे वाली साइड में प्रेजेंट होता है। पेनक्रियाज लीफ शेप्ड का होता है, लीफ जैसी शेप होती है, लाइक दिस, ऐसी कुछ शेप होती है पेनक्रियाज की, ऐसी सी शेप होती है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे स्टमक के जस्ट बिलो प्रेजेंट होता है। एंड सिक्रीट्स पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करते हैं पेनक्रियाज, दैट एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स एंड प्रोटीन्स, तीनों पे एक्ट करेंगे। हमने पढ़ा था स्टमक में पेप्सिन एंजाइम्स रिलीज होते हैं, पेप्सिन प्रोटीन्स पे वर्क करते हैं। बाइल जूस जो है वो फैट्स पे वर्क करता है, और सलाइवरी अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स पे वर्क करता है। लेकिन तीनों पे अगर बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, तीनों पे कौन वर्क करेगा, पेनक्रियाटिक जूस वर्क करेगा। एंड चेंजेस देम इनटू सिंपलर फॉर्म्स, वर्क करके सिंपलर फॉर्म्स में उनको कन्वर्ट कर देते हैं। that is glucose, fatty acids and glycerol। See what happens, pancreas is a leaf like shaped ऑर्गन है और डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो जस्ट हमारे स्टमक के नीचे प्रेजेंट होता है। वर्क क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स तीनों पे वर्क करेगा और उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देगा। वो सिंपलर फॉर्म्स क्या होंगी, सी पेनक्रियाज हैज पेनक्रियाटिक जूस, pancreas release pancreatic juice which works on carbohydrates, carbs, fats and proteins। एंड प्रोटीन्स, ठीक है, तीनों पे वर्क करेगा। कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। सिंपलर फॉर्म जो होती है कार्बोहाइड्रेट्स की वो ग्लूकोज होती है। फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। एंड प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देगा। ये सिंपलर फॉर्म्स होती है तीनों की। सो दिस इज द वे, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया, फैटी एसिड्स को फैटी एसिड्स और फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट किया, और प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। एंड दीज आर द सिंपलर फॉर्म्स। सी हियर आल्सो इट इज रिटन दैट pancreatic juice acts on carbohydrates, fats and proteins, changes them into simpler form, that is glucose, fatty acids and glycerol and amino acids respectively. So our next topic is small intestine. See, I have already told you, I have given you a brief about small intestine, that the complete digestion takes place in small intestine.
स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है हमारा, एलिमेंट्री कैनाल जो है, इसमें सबसे लंबा पार्ट जो है वो कौन सा है? स्मॉल इंटेस्टाइन है. इट इज अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 मीटर्स लॉन्ग. कितना लेंथ होती है इसकी? 6 to 7 मीटर्स लॉन्ग होती है. बट इट इज हाईली कॉइल्ड. हमारी बॉडी में ये हाईली कॉइल्ड होती है, इसलिए जो है स्मॉल स्पेस में ये आ जाती है. Most of the digestion of the food takes place here. That we have already discussed that सबसे ज्यादा जो digestion होता है, complete digestion जो होता है, stomach में भी होता है digestion, लेकिन most of the digestion takes place in small intestine. Small intestine contains finger-like projections called villi. See, small intestine में कुछ finger-like projections होते हैं, छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? विलाई बोलते हैं. फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? विलाई बोलते हैं. व्हाट इज द वर्क ऑफ द विलाई? विच हेल्प इन एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स आफ्टर डाइजेशन बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया. विलाई से क्या होता है कि जो सरफेस एरिया होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और जो एब्जॉर्प्शन वी हैव in the previous slide we have seen that कि जो most of the digestion takes place in small intestine and absorption also takes place in small intestine. तो absorption होने के लिए surface area बढ़ जाए, absorption हो जाए अच्छे से, उसके लिए villi होती है, finger like projections होते हैं. As the semi-solid food enters the small intestine, जैसे ही semi-solid food जो होता है, bolus we were talking about, right? bolus जो होता है जैसे ही small intestine में enter होता है, it is mixed with various intestinal juices. जैसे stomach में बहुत सारे juices थे, वैसे जो intestine में भी बहुत सारे juices होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? intestinal juices बोलते हैं. और जैसे ही जो हमारा bolus है वो enter होता है small intestine में, वो mix up हो जाता है in intestinal juices के साथ में. Apart from this, it receives bile juice and pancreatic juice. इस इंटेस्टाइनल जूसेस तो होते ही हैं, साथ में जो बाइल जूस होता है और पेनक्रियाटिक जूस होते हैं वो यहाँ पे रिलीज होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होते हैं. और स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस जो रिलीज होते हैं वो फिर बोलस पे वर्क करते हैं. इन स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन इनटू अमीनो एसिड्स. प्रोटीन्स को किस में ब्रेक करा जाएगा? प्रोटीन्स को किस में ब्रेक करा जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में, अमाइनो एसिड्स में. कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू सिंपलर शुगर्स सच एज ग्लूकोज. Fats are hydrolyzed into fatty acids and glycerol. In the as we discussed, जो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, स्टमक में भी यही होता है. प्रोटीन्स को किस में ब्रेक डाउन होता है? प्रोटीन्स का स्टमक में नहीं, लाइक वी डिस्कस कि जो जूसेस होते हैं वो वर्क करते हैं. इन द प्रीवियस स्लाइड वी सॉ दिस कि जूसेस जो होते हैं पेनक्रियाज, जैसे हमने बात करी थी कि पेनक्रियाटिक जूस जो होते हैं वो वर्क करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स पे, और सबको कन्वर्ट कर देते हैं सिंपलर फॉर्म में, राइट? तो ऐसे ही जो पेनक्रियाटिक जूस है वो कहाँ रिलीज हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. इसीलिए पेनक्रियाटिक जूस क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट्स को किस में कन्वर्ट कर देता है? Carbohydrates are converted into glucose and fats are converted into fatty acids, right? Fatty acids में convert कर देते हैं fats को, और proteins are converted into glycerols. See, क्या होगा? पेनक्रियाटिक जूस है, पेनक्रियाटिक जूसेस एंड बाइल जूस आर रिलीज्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन. पेनक्रियाटिक जूसेस एंड pancreatic juices work on carbohydrates, proteins and fats. Carbohydrates are converted into glucose, fats are converted into fatty acids and glycerol, and proteins are converted into amino acids. Thus digestion of food is completed in small intestine. इसीलिए बोला कि small intestine में जो because जो nutrients हैं उनको simpler form में convert कर देते हैं, ठीक है? और convert करने के बाद में उसका complete जो digestion होता है food का वो कहाँ पे होता है? small intestine में होता है. Absorption of digested food takes place in the intestinal wall. Absorption जो होता है food का digestion, जो digestion के बाद absorption होता है nutrients का, वो कहाँ पे होता है? intestinal wall में होता है absorption. You can see in the diagram, see small intestine, ये liver है, ये वाला, this part is the liver. Then stomach, ये J shaped stomach है हमारा. ये जो highly coiled structure है, ये अंदर वाला जो है, ये इसमें आई एम ड्रॉइंग द बॉर्डर लाइन. ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, इतना इतना, ये वाला,
ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। और ये जो बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये जो बाहर वाला ये जो स्ट्रक्चर है, जो इफ यू कैन सी, ये वाला अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये जो बाहर वाला ये जो आपको साइड में दिख रहा है ये लार्ज इंटेस्टाइन है। सो लिवर, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। द फूड गोज फ्रॉम स्टमक टू food goes from stomach to small intestine. In a small intestine, the digestion process is completed. Absorption also takes place in the small intestine, and then food goes to large intestine. Now coming to the next one. Next is absorption in small intestine. Small intestine में absorption कैसे होता है, absorption का process कैसे होता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे. See, absorption of digested food occurs through villi. सिंगुलर वाइलस, वाइलस जो होता है वो सिंगुलर है इसका, और विलाई जो है वो प्लूरल है. तो विलाई ऐसे छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यू कैन सी यहाँ पे, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं. ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं इनको बोलते हैं हम विलाई. ठीक है, और इनका वर्क क्या होता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करना. each villus has a network of blood capillaries close to the surface. हर विलस के पास में एक नेटवर्क होता है जो ब्लड कैपिलरीज होता है उसका, जो क्या करता है, सरफेस के बहुत क्लोज होता है, ब्लड कैपिलरीज से साथ अटैच्ड होता है. अमाइनो एसिड्स, मोनोसेकेराइड्स, शॉर्ट chain fatty acids, minerals, water soluble vitamins and water are absorbed into the ब्लड. अब यहां से क्या होता है, ब्लड में एब्जॉर्प्शन हो जाता है. किसका हो जाता है, अमाइनो एसिड्स का, मोनोसेकेराइड्स का, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स का हो जाता है. मिनरल्स, मोनोसेकेराइड्स आर आल्सो कम्स अंडर द फैट्स एंड शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स का हो जाता है, मिनरल्स का हो जाता है, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स का हो जाता है, और वाटर का भी कुछ पोर्शन यहाँ पे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है. कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है. यू कैन सी इन द डायग्राम, सी यहाँ पे जो है, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ विलस. एक विलस के अब हमें स्ट्रक्चर यहाँ पे है. शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स का एब्जॉर्प्शन हो जाता है. ठीक है, ब्लड कैपिलरीज, आप यू कैन सी हियर देयर आर ब्लड कैपिलरीज आल्सो. अमाइनो एसिड्स का हो जाता है, मोनोसेकेराइड्स का हो जाता है. ठीक है, ब्लड, लिम्फ, सो ऑल द थिंग्स आर मेंशन इन द डायग्राम एंड यू जस्ट हैव टू कीप दिस इन माइंड कि किस किस का एब्जॉर्प्शन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है. Now coming to the next one. Assimilation. We have already discussed that assimilation is the process of producing energy, right? Producing energy is the process, this process is known as assimilation. Blood transports absorbed food materials to different body cells where the food materials become integral components of the living protoplasm and are used for energy, ग्रोथ एंड रिपेयर. क्या होता है, ब्लड जो है वो फूड, जो एब्जॉर्ब फूड मटेरियल्स होता है उनको अलग अलग डिफरेंट बॉडी सेल्स तक ट्रांसपोर्ट करने का वर्क करता है. उसके बाद में क्या होता है, वेयर द फूड मटेरियल्स बिकम इंटीग्रल कंपोनेंट्स ऑफ लिविंग प्रोटोप्लाज्म. अब यहाँ पे क्या होता है कि जो फूड है वो एक इंटीग्रल कंपोनेंट बन जाता है लिविंग प्रोटोप्लाज्म का. जो हमारा प्रोटोप्लाज्म होता है सेल्स का, उसका एक कंपोनेंट बन जाता है फूड. ठीक है, एंड आर यूज फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर. अब उस फूड का क्या यूज होगा, उस फूड को एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए उसका यूज होगा, ग्रोथ के लिए उसका यूज होगा, रिपेयर, कोई इंजर्ड टिश्यूज है, कोई इंजर्ड सेल्स है हमारी बॉडी में, उनको रिपेयर करने में भी ये वर्क करेगा. दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन ऑफ फूड. इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एसिमिलेशन ऑफ food. Glucose is broken down into the cells with the help of oxygen into carbon dioxide and water to provide energy. जो ग्लूकोज होता है उसको किसमें ब्रेक डाउन कर देता है हमारे सेल्स में, with the help of oxygen into CO2 and CO2. See, glucose is broken down to produce energy, and what are the other products, CO2 and water.
किसकी प्रेजेंस में होगा? O2 की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा. ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन to form energy and other products which comes with the production of energy are CO2 and water. क्या होगा? जो ग्लूकोज होगा उसका ब्रेकडाउन हो जाता है हमारे सेल्स में. जो ग्लूकोज इज ब्रोकन, सेल्स हमारे जो होते हैं बॉडी के, उसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाता है. और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने के बाद में एनर्जी प्रोड्यूस होती है. एंड व्हाट आर द बाय प्रोडक्ट्स? व्हाट बाय प्रोडक्ट्स मींस जो साथ में और भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं आफ्टर द ब्रेकडाउन. क्या होगा? CO2 एंड वाटर जो है बनेंगे. एंड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस. अमाइनो एसिड्स आर यूज फॉर बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग द बॉडी पार्ट्स. अमाइनो एसिड्स का यूज, जो प्रोटीन्स जो थे उनका ब्रेकडाउन करके अमाइनो एसिड्स बनते हैं. अमाइनो एसिड्स का क्या यूज होता है? हमारे बॉडी का रिपेयर करना, बॉडी पार्ट्स में अगर कोई इंजरी है तो, और क्या? बिल्डिंग, हमारे बॉडी पार्ट्स को बिल्ड करना. फैटी एसिड्स जो हमारे फैट्स और फैट्स से का ब्रेकडाउन करने के बाद में फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल जो बना उसका क्या होता है? स्टोर्ड अंडर द स्किन. स्किन के अंदर उसको स्टोर कर लिया जाता है. एक्ट एज एनर्जी रिजर्व्स. जब भी एनर्जी रिजर्व्स की तरह वर्क करते हैं फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल. इनको क्या होता है? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल को स्किन के beneath the skin they are stored and they are used as food. They are used as energy reserves for the body. Coming to the next one, large intestine. What is large intestine? Large intestine is the next part which comes after small intestine. Small intestine में food का complete digestion हो जाएगा, absorption हो जाएगा nutrients का, and some part of the water is also absorbed in small intestine. Now the large intestine comes. Large intestine is wider and shorter than small intestine. जो large intestine होती है वो wider होती है, यानी कि breadth में wide होती है थोड़ी सी, और उसकी जो length होती है वो हल्की, वो small intestine के कंपैरिजन में शॉर्ट होती है थोड़ी. The chief functions of the large intestine are the absorption of water and some salts from the undigested food and elimination of solid waste. What is the chief functions? Most important function क्या होगा लार्ज इंटेस्टाइन का? कि लार्ज इंटेस्टाइन वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है. वाटर को अच्छे से एब्जॉर्ब करने में लार्ज इंटेस्टाइन का वर्क होता है. जो बचा हुआ भी, सम ऑफ द वाटर इज एब्जॉर्ब्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन बट द रिमेनिंग इज एब्जॉर्ब्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन. एंड आफ्टर large intestine the food goes to rectum and then anus. We are learning the things in that sequence only. See, अब क्या होगा? वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा और कुछ सॉल्ट्स जो है हमारी बॉडी के लिए जो इंपॉर्टेंट है उन दोनों का एब्जॉर्प्शन जो होगा वो लार्ज इंटेस्टाइन में एट द एंड हो जाएगा. नाउ द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस इज ओवर. ठीक है, अब क्या होगा? अनडाइजेस्टेड फूड जो है, अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो ही बचा. बॉडी को जो नहीं है चाहिए, अनवांटेड जो भी फूड है वो बचा. अब उसका क्या होगा? एलिमिनेशन होगा बॉडी से. तो इस सब में कौन वर्क करेगा? large intestine work करेगी. So the main function of the large intestine is for the absorption of water and some salts and to eliminate the solid waste material. However, moderate quantities of vitamin K and vitamin B complex are manufactured by bacteria in the large intestine. In large intestine, some bacteria are present which are helpful, which are good for our body, and those bacteria prepare moderate quantities like थोड़ी क्वांटिटीज में वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन के को प्रिपेयर करते हैं हमारी बॉडी में. एंड दोज बैक्टीरियाज आर हेल्पफुल. सो after the large intestine the food we will not say that the food goes to the rectum. No, the undigested food that now goes to the rectum. It is a sac like structure which stores the undigested food material or feces temporarily. क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन से जो अनवांटेड फूड मटेरियल जो था, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल था, वो रेक्टम में जाएगा. रेक्टम सिर्फ स्टोर करने का वर्क करता है, टेम्पररी स्टोर करने का वर्क करेगा रेक्टम, जहां पे जो भी हमारा फीकल मैटर जो है, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में रेक्टम में जाके टेम्पररी स्टोर हो जाएगा until it is thrown out of the body in the form of excreta. Then comes anus. Anus is the opening of the end of the digestive system. The digestive system starts from the mouth. Alimentary canal starts from the mouth and ends at anus.
अब क्या होगा, it is the opening at the end of the digestive system through which fecus is expelled out at periodic intervals, जिससे क्या होता है हमारी बॉडी से जो फीकल मैटर है वो पीरियोडिक इंटरवल्स पे आफ्टर सम आवर्स वो क्या होगा, उसको एनस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा, एंड दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल. फीकल मैटर, अनडाइजेस्टेड फूड, एक्सक्रीटा, ऑल द थ्री थिंग्स आर सेम. अब ये जो भी एक्सक्रीटा हम बोल सकते हैं, हम फीकल मैटर बोल सकते हैं, वो हमारी बॉडी से अब बाहर निकल जाएगा. सो दिस इज हाउ द डाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस, हाउ द एब्जॉर्प्शन takes place, how the assimilation process takes place. You can see in the diagram also, this is the diagram of large intestine, and this one till here it is large intestine, from here to here it is large intestine, then it is rectum जहाँ पे temporarily store होता है हमारा जो food excreta होता है वो, और anus के through जो opening होती है at the end of the alimentary canal, anus के through वो food, undigested food हमारी body से in the form of fecal matter it goes out of the body. So see, summary of action of digest. We are just having a overview whatever we learned in the previous slides. हमने क्या पढ़ा उसका एक overview लेते हैं, summary लेते हैं. See, प्लेस ऑफ डाइजेशन, ग्लैंड्स, सिक्रीशन, क्या सिक्रीट करते हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं, और डाइजेशन में एक्टिविटी क्या होती है उनकी. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट माउथ. माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, सलाइवा सिक्रीट करते हैं, और कौन सा इसमें एंजाइम होता है, सलाइवरी अमाइलेज. वी ऑलरेडी लर्न दैट द पार्शियल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टेक्स प्लेस, चेंजेस स्टार्च टू शुगर. मेल्टोस जो हम बोल सकते हैं, माल्टोस शुगर में उसको चेंज करने का वर्क करता है, कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेक डाउन करने में चेंज करता है, हेल्प करता है. Stomach. Now the food goes to there is no enzyme or any kind of digestion in our esophagus, so the next part will be stomach. Stomach में glands कोई as such present नहीं होते हैं, but gastric juices जो होते हैं वो present होते हैं. Enzymes जैसे कि pepsin release होता है, breaks protein into smaller fragments called peptones. Proteins का breakdown करता है pepsin, किसमें, proteins को peptones में change करता है. Now the comes small intestine. Small intestine में glands कौन कौन से सिक्रीट करते हैं, लिवर और पेनक्रियाज अपने जूसेस सिक्रीट करते हैं. बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस कहाँ पे सिक्रीट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट होते हैं. प्रिपेयर कौन करेगा बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस को, बाइल जूस को लिवर प्रिपेयर करेगा, पेनक्रियाटिक जूस को पेनक्रियाज प्रिपेयर करेंगे. लेकिन कहाँ पे रिलीज करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करेंगे. स्मॉल इंटेस्टाइन में नाउ द लिवर दैट रिलीजेस बाइल जूस, वो क्या हेल्प करेगा, फैटी एसिड्स के टाइनी ड्रॉपलेट्स में ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगा. पेनक्रियाटिक जूस में पेनक्रियाटिक अमाइलेज प्रेजेंट होता है, चेंजेस स्टार्च इनटू माल्टोस, माल्टोस स्टार्च को माल्टोज में चेंज करता है. ट्रिप्सिन भी प्रेजेंट होता है पेनक्रियाटिक जो जूस होते हैं उसमें, और वो प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में चेंज करने का वर्क करेगा. देन इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स की हम बात करें, जो इंटेस्टाइन्स में जो कुछ ग्लैंड्स थे, हमने बात करी थी कि इंटेस्टाइन में खुद के भी स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो रिलीज करते हैं इंटेस्टाइनल जूसेस. उसमें क्या क्या होता है, लाइपेज होता है, पेप्टाइड्स होते हैं, सुक्रेज होता है, लैक्टेज एंड माल्टेज. ये जो 5 एंजाइम्स होते हैं किसमें प्रेजेंट होते हैं, इंटेस्टाइनल जूसेस में. यू हैव टू लर्न पर्टिकुलरली कि कौन से जो जूस है उसमें कौन से एंजाइम्स जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे, और उन पर्टिकुलर एंजाइम्स का वर्क क्या होगा. तो लाइपेज का वर्क होता है चेंजेस फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन. ग्लिसरीन भी बोल सकते हैं, ग्लिसरॉल भी बोल सकते हैं, बोथ आर द करेक्ट. लाइपेज क्या करेंगे, फैट्स को फैटी एसिड्स में चेंज करने का वर्क करेंगे. पेप्टेज क्या करेंगे, पेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड्स में चेंज करने का वर्क करेंगे. अब कहां से आई पेप्टाइड्स, जो स्मॉल इंटेस्टाइन ट्रिप्सिन ने जो वर्क करा था, प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में चेंज करा था, पेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड्स में कौन चेंज कर देगा, पेप्टाइडेज कर देगा. नाउ सुक्रेज का वर्क क्या होगा, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज करना. लैक्टेज का लैक्टोज को ग्लूकोज और लैक्टोज में चेंज करने का वर्क होगा. और माल्टेज का माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का वर्क होगा. यू हैव टू लर्न दीज थिंग्स कि पर्टिकुलरली कौन से एंजाइम्स किस पे वर्क करेंगे और किसका ब्रेकडाउन किस में होगा. सो यू हैव टू कीप दिस ऑल इन माइंड. So next is our Olympiad bite. What is the first point? Bile contains no enzyme but activates enzyme lipase.
If I talk about the bile juice which is secreted by liver. Liver क्या secrete करता है? Bile juice secrete करता है. Liver secretes bile juice and bile juice doesn't have any एंजाइम. बाइल जूस के पास खुद का कोई एंजाइम नहीं होता है. वो किस में हेल्प करते हैं? वो लाइपेज के एक्टिवेशन में हेल्प करते हैं. लाइपेज इज द एंजाइम which helps in the breakdown of fats into fatty acids or we can say glycerol. ठीक है, तो किसके एक्टिवेशन में हेल्प करते हैं? लाइपेज के. बाइल जूस किसको एक्टिवेट करने में हेल्प करेगा? लाइपेज को. लेकिन बाइल जूस के पास खुद का कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है. Renin enzyme is present in the infant stomach and absent in adult. One enzyme is there, renin, जिसका नेम होता है रेनिन. एक एंजाइम प्रेजेंट होता है. इन्फेंट्स जो होते हैं उनके स्टमक में प्रेजेंट होता है ये एंजाइम. एडल्ट्स के स्टमक में ये एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है. सो यू हैव टू कीप दीज पॉइंट्स इन माइंड बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसके रिलेटेड बन सकते हैं. दैट लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज प्रेजेंट ओनली इन इन्फेंट्स नॉट इन एडल्ट्स. तो आंसर होगा रेनिन. नेक्स्ट, डाइजेशन इन रूमिनेंट्स. सी, इन रूमिनेंट्स में कैसे डाइजेशन होता है हम इसके बारे में पढ़ेंगे. what is the theory related to this? Ruminants are hoofed herbivorous mammals which include animals like cows, buffaloes, goats, horses, etc. Ruminants जो होते हैं वो hoofed animals होते हैं. हूव्ड का मतलब होता है जो पैरों के उनके तलवे होते हैं. यू कैन सी जो उनका फीट होता है, उनका जो पैरों के नीचे होता है वो हूव्ड होता है. उस चीज को जो वो द काइंड ऑफ फीट दे हैव उसको हूव्ड बोलते हैं. तो जो हूव्ड रूमिनेंट्स होते हैं, हर्बीवोरस जो होते हैं, हर्ब्स को खाने वाले जो होते हैं, हर्बीवोरस मैमल्स जो होते हैं वो क्या, जैसे कि काउस, बफेलोज, गोट्स, हॉर्सेस, ये जितने भी एनिमल्स होते हैं इनको रूमिनेंट्स बोला जाता है. रूमिनेंट्स बोलते हैं इनको. स्टमक ऑफ रूमिनेंट इज डिवाइडेड इनटू 4. रूमिनेंट के जो स्टमक होते हैं, जैसे हमारा जो स्टमक होता है, ठीक है, वैसे रूमिनेंट्स के पास जो स्टमक होता है वो 4 पोर्शंस में डिवाइडेड होता है. व्हाट आर दोस 4 पोर्शंस? रूमेन, रेक्टिकुलम, ओमेसम एंड कंपार्टमेंट्स ऑफ एबोमेसम. सी, 4 कंपार्टमेंट्स कौन से होते हैं? 4 पार्ट्स. फर्स्ट इज रूमेन, second is reticulum, third is omesum, and fourth is compartments abomesum. See, during grazing these animals quickly swallow plenty of grass without much chewing. जब ये ग्रेजिंग करते हैं ऐसे एनिमल्स तो क्या करते हैं, वो घास को खा लेते हैं जल्दी से, विदाउट प्रॉपरली च्यूइंग इट. उसको बिना अच्छे से चबाए वो ग्रास को खा लेते हैं. उसको अच्छे से चबाते नहीं है, बहुत सारी ग्रास खाते हैं तो उसको बिना चबाए वो जो क्विकली स्वेलो कर लेते हैं, गिट लेते हैं जल्दी से. The partially chewed food is swallowed. जो partially chewed food जो होता है उसको swallow कर लेते हैं ये. तो जो food है वो completely chew नहीं करते, उसको partially chew करके swallow कर लेते हैं. Then it first goes from mouth to the rumen. Mouth से कहाँ पे जाता है? खाना जो होता है वो rumen में जाता है. The first chamber of the stomach का जो फर्स्ट चैम्बर होता है रूमेन, वहां पे एंटर करता है खाना. Here it is acted upon by inorganic bacteria and other microorganisms. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये बहुत सारे इनऑर्गेनिक जो बैक्टीरियाज होते हैं वो इस पे एक्ट करते हैं इस खाने पे. रूमेन जो होता है फर्स्ट जो होगा पार्ट होगा स्टमक का, वहां पे खाना एंटर करेगा. वहां पे क्या होगा, इनएरोबिक बैक्टीरिया जो होंगे वो उसको और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होंगे छोटे छोटे वो उस खाने पे एक्ट करते हैं. ठीक है, these microorganisms produce enzyme cellulase which help in digestion of cellulose. ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, ये एक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जिसका नेम है सेल्यूलेज. जो सेल्यूलेज किस में हेल्प करता है? सेल्यूलोज के डाइजेशन में हेल्प करता है. ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. सेल्यूलोज क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होता है. सेल्यूलोज को ये प्लांट्स को खा लेते हैं तो सेल्यूलोज इनकी बॉडी में चला जाता है.
So the partially digested food called cud then goes to the सेकेंड मस्कुलर चैम्बर रेक्टिकुलम। अब जो खाना जो है वो पार्शियली डाइजेस्ट हो चुका है ह्यूमन में, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने जो सेल्यूलेज एंजाइम्स की हेल्प से फूड को पार्शियली डाइजेस्ट कर दिया है। अब जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है उसका नेम होगा कड, CUD कड। ओके, देन इट गोज टू, अब वो कहां जाएगा, सेकेंड चैम्बर रेक्टिकुलम में जाएगा, फ्रॉम वेयर इट इज सेंट बैक टू द माउथ। अब यहां से क्या होता है, वापस माउथ में जो है ये खाना चला जाता है। कहां से जाएगा, रेक्टिकुलम से जाएगा। कहां पे जाएगा, रेक्टिकुलम से माउथ में जाएगा। जो रुमिनेंट्स होता है, यू कैन सी काउ, काउ क्या करती है, कड को वो च्यू करती रहती है ना, कड को च्यू करती रहती है। तो क्यों करती रहती है, बिकॉज वो क्या होता है, ह्यूमन में जाता है, वहां पे पार्शियली इसका डाइजेशन होता है, देन रेक्टिकुलम में जाता है और रेक्टिकुलम से वापस माउथ में चला जाता है। फ्रॉम वेयर इट इज सेंट बैक टू द माउथ थ्रू च्यूइंग फॉर थॉरो च्यूइंग। अब वहां पे क्या होगा, वापस जो एनिमल है वो उसको च्यू करेगा माउथ में। दिस प्रोसेस इज नोन एज रूमिनेशन। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है रूमिनेशन। द प्रोसेस इन विच द कड इज सेंट, द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड दैट इज कड इज सेंट फ्रॉम द ruminant from the reticulum chamber to the mouth. This process is known as rumination. Next, see, the rechewed food is swallowed for the second time. कहां पे होगा, second time। अब वो वापस स्वेलो हो जाएगा, वो वापस सेकेंड टाइम उसको जो काउ है वो स्वेलो कर लेगी। आफ्टर पासिंग थ्रू द फर्स्ट टू चैम्बर्स, जो फर्स्ट टू चैम्बर्स है उससे पास होने के बाद में ये खाना कहां, जो कट होगा वो कहां पे जाएगा, वापस थर्ड चैम्बर में अब एंटर होगा। फर्स्ट टू चैम्बर्स वर rumen एंड रेक्टिकुलम। ओके, थर्ड चैम्बर जो था ओमेसम में एंटर हो जाएगा। हियर द फूड इज फर्दर ब्रोकन down into still smaller pieces and finally enters the fourth chamber। अब क्या होगा, फूड को ओमेसम में और ज्यादा उसका ब्रेकडाउन होगा फूड का और वो फोर्थ चैम्बर में एंटर हो जाएगा। द फोर्थ चैम्बर इज ओमेसम, एबोमेसम इज ट्रू स्टमक। हम बोल सकते हैं ये क्या होता है, ट्रू स्टमक होता है। जो ruminants होते हैं एनिमल्स, उनका ट्रू स्टमक होता है। हेयर द एंजाइम्स एक्ट अपॉन द फूड। एंजाइम जो है यहाँ पे एक्ट करते हैं खाने पर। अभी तक पार्शियली डाइजेशन हुआ था, अब यहाँ पे जो है डाइजेशन टेक प्लेस करेगा। आफ्टर दिस द डाइजेस्टेड फूड, अब फूड डाइजेशन हो गया। अब ये जो डाइजेस्टेड फूड है ये स्मॉल जो है ये इंटेस्टाइन में जाएगा फॉर कंप्लीट डाइजेशन। यहाँ पे फूड का कंप्लीट डाइजेशन होगा और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी हो जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन का वर्क, जो इंटेस्टाइन का जो वर्क होता है र्यूमिनेंट्स में वो हमारी तरह सेम होता है, लेकिन स्टमक जो होते हैं उसके चैम्बर्स होते हैं, उसकी वजह से जो चैम्बर्स होते हैं उसमें अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं। फर्स्ट चैम्बर होता है र्यूमन, सेकेंड इज रेक्टिकुलम, सेकेंड वन वाज ओमेसम एंड थर्ड वन इज एबोमेसम। तो यहाँ पे जो फोर्थ चैम्बर्स होते हैं इन ये स्टमक के होता है और ट्रू स्टमक कौन सा होता है, एबोमेसम होता है। सी, यू कैन सी इन द डायग्राम, ये जो माउथ है, माउथ से खाना कहां पे जाएगा, पहले फर्स्ट कहां पे जाता है, फर्स्ट चैम्बर कौन सा हमने पढ़ा था, हाँ, तो द फर्स्ट चैम्बर जो होता है वो कौन सा होता है, र्यूमन, फर्स्ट चैम्बर होता है। सेकेंड वन इज रेक्टिकुलम, रेक्टिकुलम से वापस माउथ में चला जाता है कड, वहां पे च्यू कर वापस रीच इट इज द फूड इज रीच्यूड एंड द थर्ड वन वाज ओमेसम एंड फोर्थ वन इज ओबेमेसम। तो ट्रू स्टमक कौन सा होता है, एबोमेसम होता है, राइट। And after these four chambers, the food enters in the small intestine where complete digestion takes place and absorption also takes place. Like in human beings हमने जैसा पढ़ा था वो सेम यहाँ पे भी होता है। तो complete digestion यहाँ पे होगा and complete digestion and absorption of nutrients takes place here.
See, this one is esophagus or we can say the food pipe, जैसे human beings में होती है वैसे ही. तो alimentary canal किसकी पढ़ी हमने? Cow की, and cow is a ruminant animal. And which process is known as which process, what is the name of the process that in which the cow or we can say any ruminant gets the food from the reticulum compartment of the stomach to the mouth. जो रेटिकुलम कंपार्टमेंट है उससे माउथ में वापस आएगा खाना, वो प्रोसेस कौन सा होगा? रूमिनेशन प्रोसेस होता है. वो कौन सा प्रोसेस होता है? रूमिनेशन. वी ऑलरेडी लर्न दिस. नेक्स्ट, now see, ruminants are able to digest cellulose as they contain bacteria and other microbes in their stomach which assist in digestion of cellulose. We have already got this that जो cellulose होता है वो ruminants आराम से cellulose को digest कर सकते हैं because उनके पास cellulase enzyme भी present होता है और उनके पास कुछ बैक्टीरियाज माइक्रोब्स होते हैं स्टमक में जो सेल्यूलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं और सेल्यूलोज एंजाइम भी इनके पास होता है, इसलिए सेल्यूलोज का डाइजेशन इनकी बॉडी में आराम से हो जाता है. ओलंपियाड बाइट. Abomasum is called the true stomach of ruminants. We have got this कि abomasum जो होता है वो true compartment, we can say true stomach जो होता है वो कहलाता है. Abomasum को क्या बोलते हैं? True stomach of ruminants. Plants and its parts are rich in cellulose, which is a complex sugar, and it is difficult to digest. Plants जो होते हैं, मैंने आपको बताया था, plants के पास cellulose होता है और cellulose होता है और plants को जो ruminants होते हैं वो खाते हैं तो उसकी वजह से cellulose उनकी बॉडी में भी cellulose चला जाता है. अब क्या होता है? ये कॉम्प्लेक्स शुगर होती है, शुगर होता है. सेल्यूलोज इज अ कॉम्प्लेक्स शुगर और इसको डाइजेस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है. दिस इज व्हाई इट रिक्वायर्स मोर च्यूइंग. सी व्हाट हैपेंस कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना इज बिट डिफिकल्ट. सो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए च्यू करना जरूरी होता है खाने को. इसीलिए जो रूमिनेंट्स होते हैं वो कड को वापस माउथ में लेके आ सकते हैं फॉर रीच्यूइंग इट, राइट. Ruminants contain bacteria and other microbes which assist in the digestion of cellulose. We already got this point कि ruminants के पास बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं जो किसमें हेल्प करते हैं? जो सेल्यूलोज होता है उसके ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं. सेल्यूलोज हेल्प्स इन द डाइजेशन, सेल्यूलेज एंजाइम हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज. Human beings cannot digest and cannot eat and digest cellulose as they do not have cellulose digesting बैक्टीरिया इन देयर स्टमक और इंटेस्टाइन. ह्यूमन बींग्स जो है वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते बिकॉज उनके पास ऐसे बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं प्रेजेंट होते उनके स्टमक में. गट में ऐसे बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे पास नहीं होते हैं जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सके और बिकॉज हमारे पास और ऐसे बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट नहीं होते हमारे गट में जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट में करने में हेल्प करें और सेल्यूलेज एंजाइम भी प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए ह्यूमन बींग्स इसको सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं. आई होप यू गॉट दिस. Next is our self-test 2. In this, we will do some questions. The theory of the chapter is completed here. Now, let's see, do some questions. We will also have a complete practice session on this chapter in the next video. Let's start from the first question. What is the mode of feeding in squirrel? Squirrel eats nuts, seeds, right? What is the mode? Mode is swallowing, chewing, gnawing or sucking. Gnawing is the mode, if you remember, है ना. gnawing, rabbit में, squirrel में क्या होता है? जो mode of feeding होता है उसको हम क्या बोलते हैं? gnawing बोलते हैं. Second is dash teeth are used for cutting and biting. Cutting and biting में कौन से help करेंगे? Incisors, right? Cut करने में और bite करने में incisors help करते हैं. So let's do the next question. Select the correct match. We have to find the correct match. Sponge, filter feeding. Yes, we already got this, that the mode of feeding in sponges is filter feeding. Let's see the next options also. Paramecium, proboscis. Proboscis is actually
लॉन्ग ट्यूब लाइक माउथ विच इज प्रेजेंट इन इंसेक्ट्स, तो पैरामीशियम में तो बिल्कुल नहीं होती, तो ये इनकरेक्ट है. If I talk about Hydra, see Hydra has cilia? No, Hydra doesn't have cilia. Hydra के पास cilia नहीं present होते हैं. Cilia is present in paramecium. So this is also incorrect. Next is amoeba has flagella? No, amoeba doesn't have any flagella. So this is also incorrect. So answer will be A. Next, bile is secreted by, bile juice is secreted by liver. So the answer will be C. The process of utilizing the nutrients to produce energy. Nutrients to produce energy. Energy is produced in which process? Assimilation. So the answer will be B. So we are done with this chapter. We have also did some questions in between the theory. Now the next question will be completely based on questions related to this chapter. So stay tuned for the next video. Thank you so much.